الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. اسٹوڈینٹس آج سے میں باقاعدہ ترجمۃ القرآن کلاس 9 اس کا پہلا لیکچر لانگ کویسچن دینا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے. سورت کا نام ہے سورت مریم. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کون ہے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. مریم علیہ السلام جب چھوٹی تھی تو کفالت کی ہے حضرت زکریا علیہ السلام. وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے. وہاں بے موسمی پھل دیکھے. چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی تھی, ان کی اولاد نہیں تھی. وہاں دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں دعا کر رہے اے اللہ مجھے اولاد دے. اس سے ایک نقطہ یہ سمجھیے گا, بیٹے بیٹیاں یا کسی کو کچھ نہ دینا یہ اللہ کے اختیار ہے. اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ ہی سے ساری چیزیں مانگی ہیں. بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ نے دعا کو قبول کیا. پھر حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو فرشتے نے ان کو بیٹے کی بشارت دی. تو اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر انہوں نے کیسے بات کی. حضرت مریم علیہ السلام پریشان تھی تو اللہ نے سکھا دیا کہ آپ نے کہنا ہے میرا روزہ ہے. جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے یہی جواب دیا. تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ ایک بچہ کنگوڑے میں ہے یہ کیسے بات کرے گا. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا قال انی عبد اللہ, کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہمارے ترجمے کا حصہ ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے. آج ہماری بات ہے لانگ کویسچن. اس کی میں آپ کو پریزنٹیشن بھی بتاتا ہوں, اس میں لکھنا کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ سورت مریم کی ہیڈنگ سینٹر میں لکھیں گے اور اس کے نیچے لائن لگائیں گے تاکہ خوبصورت نظر آئے. پھر لانگ کویسچن شروع کریے. فرسٹ پیج ہے آپ کا, یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے. تعارف میں آپ نے 2-3 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں 98 آیات 98. تو اسی بات یاد کرتی مکی اور مدنی صورتیں کیا ہیں. بہت سے بچے کہتے ہیں مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی. ایسی بات نہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی, چاہے آپ کہیں بھی تھے. اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی, چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں بھی تھے. تو یہ ہے کہ مکی صورت اور 98 آیات ہیں اس میں. اور اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے مریم. اس کا نام
रखने की वजह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा तफसील से किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत मरियम है। ये देखिए, यह हेडिंग है तारुफ की वजह तस्मीया। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी सूरत मरियम का नज़ूल किस वक्त हुआ। सूरत मरियम उस वक्त नाज़िल हुई जिस वक्त मुशरिकीन मक्का का जुल्म उरूज पर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया और ये हबशा की पहली हिजरत थी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी हिजरत हबशा। सबसे पहले हबशा मुल्क कहाँ पे है? बड़े आज़म अफ्रीका में है, और वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसको निजाशी कहते थे। निजाशी नाम नहीं था, निजाशी एक लक़ब था। जैसे मिस्र में जो बादशाह होता था वो उसको फिरौन कहते थे, ऐसे हबशा में बादशाह को निजाशी कहा जाता है। तो इस हिजरत में 11 मर्द थे और 4 औरतें थी। मुसलमान जब हिजरत करके वहां पहुंच गए तो कुफ्फार को फिर भी चैन ना आया। वो वहां से हबशा चले गए। उनका एक वक्त हबशा में गया और उन्होंने निजाशी से मुलाकात की और कहा कि ये मुसलमान भाग के आ गए, हमारे कुछ लोग मक्का से भाग के आ गए, आप हमें वापस कर दें। तो निजाशी ने मुसलमानों को बुलाया, उनसे बातचीत की, और जिस वक्त बातचीत की तो वो मुशरिकीन मक्का का वफद भी वहाँ मौजूद था। दरबार में हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ी पुरअसर तकरीर की जिससे निजाशी के दरबारी हिल गए, उनका बड़ा असर हुआ। और उन्होंने उसके चंद, ये मैंने यहाँ वो आपने जो स्पीच है किताब में लिखी हुई है, यहाँ आपने वो लिखी, ये हेडिंग है आपकी, ये हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला की सिक में उसके चंद अल्फाज, चंद बातें। कहे निजाशी, हम जुल्म करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, हर बुराई हमें मौजूद थी, नेकियों से हम उससे दूर थे। फिर अल्लाह ने हम में से एक नबी भेजा जिसने हमें अच्छाई की तालीम दी, हमें अच्छी बातें बताई, नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अच्छे आमाल करने का हुक्म दिया। हम उस पर ईमान लाए। जब हम उस पर ईमान लाए तो ये मुशरिकीन मक्का हमारे खिलाफ हो गए, इसलिए हम मक्का से निकल कर यहाँ आते हैं। उन्होंने जब ये रीज़न बताई तो निजाशी तकरीर सुनकर रोने लगा। उसने कहा, अच्छा ऐसे करो, जो तुम्हारे नबी पर कुरान उतरा है हमें कुछ वहां से सुनाओ। तो हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत मरियम की आयत पढ़कर सुनी। उन्होंने जब ये आयत सुनी, कुरान सुना, कुरान का बहुत असर हुआ। और देखें, कुरान जो है ना, इसका असर है अगर गौर से पढ़े। कई चोर और डाकू कुरान को सुनकर उन्होंने तौबा की, ईमान ले आया और अपनी जिंदगी की इस्लाह की। अगर कुरान गौर से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो इसमें असर है। अच्छा, उन्होंने जो बात की है ना, निजाशी ने जब ये सुना तो कहा, ये कलाम यानी कुरान और इंजील एक ही चिराग की रोशनी। ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बुनियादी तालीमात हैं आसमानी किताबों की, उसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत है। किसी नबी की दावत तौहीद से खाली नहीं थी, किसी नबी की दावत ऐसी है। तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये ऐसी बातें जिसकी दावत हर नबी ने दी है। आखिरत का मुनकर कोई नहीं। अच्छा, उन्होंने जब ये कहा, और जो वफद आया हुआ था वो नाकाम वापस चला गया, क्योंकि निजाशी ने इनकार कर दिया कि मैंने इन आदमियों को आपको नहीं दिया। तो मुसलमान वहाँ रहने लगे, वहाँ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सूरत मरियम का खुलासा। खुलासा क्या? तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद, रिसालत और आखिरत।
जैसा हेडिंग देंगे इसके मज़ामीन जो डिस्कस किए गए हैं, आप वो सारे मज़ामीन उसकी थोड़ी थोड़ी आप पॉइंट्स बना देंगे मज़ामीन में 1 2 3 4 ये आप लिखेंगे। और आखिर में इल्मी और अमली नुकात, मैं थोड़ी बात करता हूँ इल्मी नुकात की कि ये हमने क्यों लिखी है। इल्मी नुकात कि ये सारा सबक पढ़ने से हमारे इल्म में कितना इजाफा हुआ और इन नुकात पर हमने कितना अमल किया। उसमें एक बात ये है कि किसी नबी में कोई मुजज़ा है तो वो उसको अल्लाह का बेटा नहीं बनाते, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अपना बेटा कहा। अल्लाह ने फरमाया मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद, अल्लाह की शान नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बना, सुबहान अल्लाह, वो पाक है। किससे? अल्लाह इन बातों से पाक है, बीवी से, बेटों से, औलाद, उसके अलावा खाने से, पीने से, तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक है। सुबहान अल्लाह का हुक्म जब जब इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करते कहते हो जा और वो काम हो जाए। जैसे हम कहते थिंक डन, कोई सोचा और वो हो गया। तो स्टूडेंट आपने लॉन्ग क्वेश्चन है जी 10 नंबर का, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने ये हेडिंग देनी है कम अज कम आपके 2 पेज, कम अज कम, ज़्यादा बोले बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो टॉपिक है सूरत मरियम का, इसमें किताब में मवाद काफ़ी दिया हुआ है। आप आगे चलेंगे तो अगले जो टॉपिक हैं उनमें मवाद कम है, सिर्फ इसमें मवाद ज़्यादा है। तो उनमें भी आपने कम अज कम 2 पेज बनाने हैं। इस तरीके से आपका इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।